Friends, welcome on Europedia. And as you know, I'm making videos on particular research domain in top global institute universities where our students have recently got positive replies from the professors, and in the past students have joined. So my today's video is related to additive manufacturing, 3D printing also it is called. And let me tell you, 3D printing or additive manufacturing is interdisciplinary research area. Not only mechanical and civil engineers go in this, but so many other branches like metallurgical engineers, material science domain, production engineers, even science graduates and agriculture, textile people, they also are going, and I have seen that pharma students have also got opportunities in 3D printing, working with the professors on different projects. So 3D printing is a truly interdisciplinary area. Now, if you have done your masters and आपने 3D printing additive manufacturing में काम किया है, then you can think of pursuing your PhD in this particular field in top global institutes. But if you are graduate and you are looking for direct PhD opportunities and you are in the process of doing project on 3D printing, या आपने 3D printing पे project किया है and you are looking for direct PhD opportunities, this video will be relevant for you. मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यूनिवर्सिटीज, हाई क्यूएस रैंक से लेके लो क्यूएस रैंक्स तक की यूनिवर्सिटीज, कौन से रिसर्च एरिया में वहां पे काम चल रहा है, कौन प्रोफेसर काम कर रहा है वहां पे, और डेडलाइंस जो हैं वो यूएस यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस हैं. आई डोंट थिंक दैट इज रेलिवेंट फॉर यू टू बी आई विल डिस्कस इट बिकॉज दिस अ जेनरिक वीडियो कि अगर मैं 3D प्रिंटिंग में काम कर रहा हूं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मेरे को किस यूनिवर्सिटी में मैं अपॉर्चुनिटी है. As I told you, 3D printing is a generic domain, interdisciplinary domain. That means if you are from pharma background, you will see some different professor. If you are from mechanical engineering background, then professor will be using 3D printing for something different. If you are civil engineer, then 3D printing may be used for construction work and उसका ambit अलग होगा. तो इसका जो एप्लीकेशन है 3D प्रिंटिंग का, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, वो अलग अलग फील्ड के अंदर एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन के बेस पे आपको ज्वाइन करना है. A student from the background of textile should not join mechanical engineering professor who is working in 3D printing because शायद उसके लिए वो relevant ना हो. So it is very important for you to see the background of the professor, what research area that professor is in, and what are his research papers. And then next stage will come if you find his interest, his research group, working in the field of your research interest. Then you can always drop a warm mail to him, not cold mail but warm mail. Warm mail drop करने के लिए आपको प्रोफेसर का रिसर्च एरिया पता होना चाहिए and you should have reason to tell that I want to work with you in your research group. तो वो आपके पास पता होना चाहिए. तो warm mail हम उनको drop करें and once we drop the warm mail to them and we get the response, accordingly we can think of applying. Let me now show you some of the universities. So this is University of California, Cornell University, Columbia University, University of California. ये इनके QS ranks दिए हैं. So the QS rank, as I told you friends, we are giving you QS ranks very high, within 25, within 50, within 100 to within 500 to within 1000. और ये सारे QS ranks, एक और मैं तुम्हें बात बता दूं, let QS rank is not the only criteria. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि दिस इज QS रैंक 400 एंड दिस यूनिवर्सिटी में QS रैंक इज 40, सो 40 QS रैंक में PhD करना विल बी बेटर देन 400. इट इज नॉट ऑलवेज दैट वे. आई मीन देयर मे बी द चांस दैट वेरी गुड प्रोफेसर एंड वेरी गुड रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन इन यूनिवर्सिटी जिसका QS रैंक कम है. तो आपको जब PhD के लिए आप अपॉर्चुनिटीज देखें तो आपको प्रोफेसर एंड उसका रिसर्च वर्क देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड प्रोफेसर भी आपको PhD में एडमिशन तभी देगा जब आपका रिसर्च वर्क भी उससे मैच करता है. अगर आप MS के लिए जा रहे हैं तब भी सिमिलर है. अगर आप BTech के बाद MS अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मैं इस प्रोफेसर के पास काम करूं, ये मेरे रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा है. MS और PhD में डिफरेंस कहां पे आता है? अगर आप MS के लिए किसी प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं, वार्म मेल उसमें भी करना पड़ता है. अगर आप किसी प्रोफेसर को MS के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च एक्सपीरियंस या रिसर्च बैकग्राउंड नहीं मांगता, वो आपसे रिसर्च इंटरेस्ट मांगता है, रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं मांगता. लेकिन अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं तो रिसर्च इंटरेस्ट के साथ साथ वो रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगता है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस व्हेन यू अप्रोच सम प्रोफेसर फॉर MS प्रोग्राम एंड फॉर PhD प्रोग्राम. अब आपका अगर रिसर्च इंटरेस्ट 3D प्रिंटिंग में है तब आप किसी प्रोफेसर का प्रोफाइल को देखेंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे, हाँ मैं इसके साथ काम करना चाहता हूं, इसके रिसर्च ग्रुप में काम करना चाहता हूं एज MS स्टूडेंट, एंड देन यू विल अप्रोच हिम.
So friends, these are the university we have taken, like University of Alabama, Texas Tech University, या Louisiana State University, या Stephen Institute of Technology, या University of South Carolina. तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका QS रैंक अच्छा नहीं है, बट you must have seen the students which actually have got selected, and you have interacted with these students. They are doing wonderful good work in that. Even Texas Tech University जिसका QS रैंक आपका वेरी करता है, QS रैंक आपका इसका बहुत हाई नहीं है, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर गेटिंग फुली फंडेड डायरेक्ट PhD अपॉर्चुनिटीज इन दिस, फुली फंडेड डायरेक्ट PhD अपॉर्चुनिटीज इन यूनिवर्सिटीज के अंदर है। तो सोचो, जो स्टूडेंट आप में से जो इंडिया के स्टूडेंट हैं जो इन यूनिवर्सिटीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ऑर्डिनरी कॉलेज से हैं और आप देख रहे हैं मेरे को US जाना है, फुली फंडेड PhD प्रोग्राम के लिए जाना है, तो दीज यूनिवर्सिटीज आर वेरी गुड, यू कैन थिंक ऑफ ज्वाइनिंग दीज यूनिवर्सिटीज। सिमिलरली यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा हुआ, लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी, स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, ये सारी लो QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इनके अंदर भी रिसर्च ग्रुप में काम अच्छा होता है। सो अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इन यूनिवर्सिटीज में जो काम चल रहा है, पहले मैं यूनिवर्सिटीज का आपको बता दूं, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 200 से 500 की रेंज में जो यूनिवर्सिटीज हैं, अभी ये वो यूनिवर्सिटीज हैं, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एम्स्टर्डम, सो वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं तो आप बोल सकते हो कि IITs की लीग की यूनिवर्सिटीज हैं, IITs का रैंक कुछ ऐसा है, बट दैट मीन्स दे आर गुड यूनिवर्सिटीज, आप इनमें अप्लाई करने की सोच सकते हैं। एंड देन कम्स रियली गुड यूनिवर्सिटी जिनका QS रैंक अच्छा है, 50 से 100 के बीच में है। कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी होगा, ड्यूक यूनिवर्सिटी हो गया, पेन स्टेट हो गया, ये अच्छी QS रैंक वाली यूनिवर्सिटीज हैं और पहली 50 के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले हो गया, कॉर्नेल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया LA, तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, दीज आर रियली गुड QS रैंक्ड यूनिवर्सिटीज। अब these are the professors who are working in these universities in the field of additive manufacturing, that you can see these are the professors who are working, and most important is research area, किस में आपको काम करना है। तो मेटा मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये वाली फील्ड काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिनमें स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस एक्टिविटी नाउअडेज। ओके, सो या सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का तो ये सारा का सारा मैं आपको बता ही रहा हूं। अगर आप में से किसी ने पीजो इलेक्ट्रिक, मेटा मटेरियल्स, मटेरियल साइंस, मटेरियल डोमेन में काम किया है, दैट ऑल्सो इज देयर। Similarly, there are structural materials. So the professor who is working in additive manufacturing, solid mechanics, structural material, that means that professor is in the field of in the field of your civil engineering. तो वो आपका सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। आई थिंक नाउ इट विल बी विजिबल। या दीज आर द रिसर्च एरिया विच आई वांट टू शो यू। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस। अब बहुत से ऐसे आप में से इंडिविजुअल हैं जो ये बोलते हैं दैट उनको पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है, और वो डोमेन आप लोग अच्छा जानते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं मेरे को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किया है, या AI का यूज करना चाहता हूं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का भी यूज करना चाहता हूं, और आपका मास्टर्स का प्रोजेक्ट वैसा है, तो ऑल्सो दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सिमिलरली अगर आप लिथियम आयन बैटरीज, नैनो स्ट्रक्चर्ड मेटल, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, देन ऑल्सो दैट इज देयर फॉर यू। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, बायो मटेरियल्स, इस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर फॉर यू। एंड अगेन ग्रीन स्टील, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज द थिंग्स, सॉलिड मैकेनिक्स, सो ये आपके पास दीज आर द डोमेन्स फॉर यू, राइट। रीजनरेटिव मेडिसिन, बायो मटीरियल्स, सो दिस ऑल द डोमेन्स। तो आप देख लो कि आप किस फील्ड में, ये कन्वर्जिंग फील्ड है, दैट मींस दैट प्रोफेसर इज वर्किंग इन दिस फील्ड। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, मेटलर्जी, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड फ्लो, मशीन लर्निंग, आपको दिखेगा तो बड़े वेरिड से इंटरेस्ट हैं। सो कहां पे कन्वर्जेंस कहां पे है, तो इस प्रोफेसर के रिसर्च ग्रुप में तो बड़े वेरिड से एरियाज हैं इन विच ही इज वर्किंग। तो डोमेन यू कैन सी, ओके दीज आर द डोमेन्स ही इज वर्किंग इन, दिस प्रोफेसर इज वर्किंग इन पर्टिकुलर एरियाज। अगर आपको उसी में इंटरेस्ट है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दोज पर्टिकुलर डोमेन्स। लेजर प्रोसेसिंग, माइक्रो नैनो मैन्युफैक्चरिंग, लेजर मटेरियल प्रोसेसिंग, ऑल दीज थिंग्स। एंड या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो ये वाला जो आजकल डोमेन है ना, ये बहुत ज्यादा बेसिकली एक काफी फ्रिक्वेंटली यूज्ड डोमेन है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसमें बहुत ज्यादा वर्क प्रोफेसर्स इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर डूइंग।
making use of AI and ML in additive manufacturing. So एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस कॉम्बिनेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, राइट. सो बायोमटेरियल्स, दैट इज अनदर थिंग. सो इफ यू आर फ्रॉम बायो डोमेन, यू नो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बायोमटेरियल पे काम करते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते हैं. Okay, so these are some of the areas, friends. So if you are from a background of mechanical engineering, civil engineering, biomaterials, biotech domain, or from metallurgy or production background or textile, agriculture, तो आप फार्मा, आपको अपना डोमेन देख के देन यू आर टू डिसाइड विच एरिया यू वांट टू गो. प्रोफेसर का प्रोफाइल जरूर देख लें, वो किस पे प्रोजेक्ट कर रहा है. अगर आपके साथ प्रोजेक्ट मैच करता है देन आई थिंक you can drop a warm mail to the professor, and don't forget to discuss the mentors of Yourpedia in framing such mail to the professor. The moment you frame such mail, then the impact will come for that. I hope you understood the point, friends. So additive manufacturing is a great opportunity for foreign education, and in case you are interested for that, you can proceed forward. All the very best, friends. Thank you.